1,24,000 انبیاء، لیکن صرف 25 کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ کیا آپ کو پتا ہے یہ انبیاء کون تھے، کس قوم کو بھیجے گئے، اور وہ مقامات آج کے دنیا کے نقشے پر کہاں ہیں؟ آج ہم ایک ایسا سفر کریں گے جو زمین کے ہر کونے کو چھو کر گزرے گا، عراق سے مصر تک، فلسطین سے جزیرۃ العرب تک۔ یہ انبیاء کرام کون تھے اور ان کا پیغام کیا تھا؟ یہ سب بشر تھے، بالکل ہماری طرح، گھر والے تھے، خواہشات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری حیات اپنے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا، ان سب پر درود و سلام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان اور پہلے نبی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف قسم کی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ فرشتوں نے مٹی کو پانی ملا کر شکل دی، 40 برس تک انتظار کیا، مٹی سخت ہوئی اور خشک ہو گئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ، جمعہ کا مبارک دن، اللہ تعالیٰ نے انہیں روح عطا فرمائی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم نے حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح کیا جو جنت میں پیدا ہوئی تھی۔ دونوں وہاں کچھ عرصہ ساتھ رہے، لیکن منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ توبہ کی، اللہ نے معاف فرمایا اور خانہ کعبہ بنایا، دنیا کی پہلی مسجد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، انہیں 10 صحیفوں پر مشتمل ایک مختصر کتاب دی گئی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم کی تعلیم دی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 960 برس تک حیات رہے۔ ان کی قبر مبارک بیت المقدس یا منا یا عرفات میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، قرآن کریم میں مذکور نبی، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 مختصر صحیفے عطا فرمائے اور بہت سے علوم سکھائے۔ ان سے قبل لوگ حیوانات کی کھالیں یا پتے پہنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو لباس سینا اور شہر بسانا سکھایا۔ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو ان کی اپنی زبان میں دین حق کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے علم سکھایا اور ستاروں اور آسمان کی حرکاتوں کا مطالعہ کیا، اسی لیے انہیں علم اور فن کا نبی کہا جاتا ہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صبر کرنے والا، نیک اور صدیقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ بہت سے علماء اسلام کا موقف ہے کہ وہ بغیر موت کے آسمان پر اٹھائے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمائے گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق انہیں عراق کے موصل کے علاقے میں بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹامیہ کے بت پرست تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اور ظلم جیسے گناہ عام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے 950 برس تک لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مانے۔ اکثریت نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور برا سلوک کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے طوفان کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑی کشتی بنائی، اس پر مومنین اور ہر جانور کا جوڑا سوار کیا۔ پھر طوفان آیا، آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابلا، جو کفار تھے سب غرق ہو گئے۔ طوفان 6 ماہ تک جاری رہا، کشتی کوہ جودھی پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کشتی پر نہ چڑھ سکا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں تمام انسانوں کے آبا بنے۔ اسلامی مورخین کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، فارسی، حام کی اولاد میں افریقی، مصری اور حبشی، یافس کی اولاد میں ترک، یونانی، روسی، منگول، چینی، ہندوستانی اور یوروپین۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام
हजरत नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया जो यमन में आबाद थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाईं, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते थे, तकब्बुर करते थे, तिजारत में धोखा देते थे। हजरत हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले कहत से आगाह फरमाया, फिर एक शदीद गर्म हवा भेजी जो उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ के मोमिनीन बच गए। हजरत हूद बाद में मक्का में आबाद हुए और वहीं पर विसाल हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। समूद बुतप्रस्त थे, टेक्नोलॉजी और मेमार में माहिर। पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बसाते थे। वो आज के सऊदी अरब के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम के लिए काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी का कत्ल कर दिया। यह सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं था, यह अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक शदीद आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन बच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद कौम ए सदोम की तरफ भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से कलाम किया। लेकिन कौम बुतप्रस्त थी और फहिशात जैसी बुरी हरकतें करती थी जो दुनिया में पहली बार थी। ये सिर्फ शख्सी गुनाह नहीं था, जबरन करते थे, लड़कों को गुलाम बनाते थे। कुरान करीम में फरमाया गया, तुम मर्दों के करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। हजरत लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 खूबसूरत जवान आए, हजरत लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरन तलब किया। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उलटा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म अंबिया में से एक। उन्हें कौम कल्दान की तरफ भेजा गया जो बुतप्रस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के मुहाफिज थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हराया, लेकिन फिर भी कौम ने गजबनाक होकर एक बड़ी आग जलाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई। हजरत इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन हिजरत की। मिस्र में हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम से दूसरा निकाह किया। बहुत सालों बाद हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और हजरत सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के अंबिया आए, यानी असल में यहूदी और अरब भाई हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की, हज करवाया और लोगों को सिखाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करें। हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ताला ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अजहा इसी वजह से मनाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 बरस की उम्र में बैतुल मुक़द्दस में विसाल फरमाया। वो अल्लाह के खलील हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند، ان کی والدہ حضرت ہاجر تھیں۔ جب وہ بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کی والدہ کو مکہ کے بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ دیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ پھٹ پڑا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ دونوں نے اطاعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا، اللہ کا حکم پورا کرو، میں صبر کروں گا۔ جب تلوار چلنے لگی تو اللہ نے ایک جانور بھیجا اور فرمایا، ہم نے انہیں عظیم قربانی سے بدل دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ عرب کے بزرگ باپ مانے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند، ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ جب حضرت سارہ بہت عمر دراز ہو چکی تھیں، اللہ نے فرشتے بھیجے اور خوشخبری دی کہ ایک بیٹا ہوگا۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن اللہ کا وعدہ سچ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے فرزند، چھوٹی عمر میں انہوں نے سپنا دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے سمجھا کہ یہ بڑی عظمت ہے۔ بھائیوں کو حسد ہوا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر رہے۔ عزیز کی بیوی نے بری نیت کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ سے ڈرو، اور انہیں قید خانہ بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے سپنے تعبیر کیے۔ بادشاہ نے سپنا دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال سوکھا اور قحط۔ بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ سوکھے میں بھائی مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا، لیکن خود کو چھپایا۔ آخر میں خلاصہ ہوا، پورا خاندان مصر آ گیا اور سپنا سچ ہوا۔ والد، والدہ اور 11 بھائی سب نے سجدہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت صبر کرنے والے نبی۔ وہ بہت دولت مند زمیندار اور صاحب عیال تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور، کھیت اور بیٹے بیٹیاں تھیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کا ایمان آزمائے۔ اللہ نے فرمایا، جا، لیکن ان کے دل پر قابو نہ پانا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی۔ دولت چلی گئی، جانور مر گئے، بیٹے بیٹیاں بھی گزر گئیں۔ آخر میں انہیں لمبی بیماری لگی، جسم پر زخم، درد رات دن، دوست بھی دور ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا۔ نہائے تو بیماری غائب، جسم تازہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت، خاندان اور صحت واپس دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نیک نبی، وہ مدین قبیلے کے پاس بھیجے گئے۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، لیکن بہت دھوکے باز تھے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید سکھائیں اور انصاف کا حکم دے۔ انہوں نے فرمایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو نقصان نہ دو۔ لیکن مدین والوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے، شعیب، ہم اپنی تجارت اپنے طریقے سے کریں گے۔ انہوں نے نبی کو دھمکیاں دیں اور اللہ کا مذاق اڑایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے سمجھایا، اگر نہیں مانے تو عذاب آئے گا۔
आखिर में एक जोर की चीख आई और शदीद झलझला। सब कुफ्फार हलाक हो गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे नबी, उन्हें नीनवा, इराक के करीब की कौम के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरे काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद अपनाओ, गुनाह छोड़ो वरना अजाब आएगा, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मायूसी हुई। उन्होंने दुआ की और कौम छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक जहाज पर सवार हुए। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। खुरा से पता चला कि यह तूफान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से है। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, गहरा समुंदर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर नीनवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी। वो बनी इजराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने उनसे सीधा कलाम फरमाया। फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इस्राएली लड़का कत्ल कर दो। उनकी वालिदा ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और वहां से हिजरत करके मदयन गए। वहां जाकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ताला ने आवाज दी, मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हें नबी बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए। भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी, बनी इजराइल को आजाद करो। लेकिन फिरौन ने इनकार किया। अल्लाह ने 9 मौजिज़ात भेजे। डंडा सांप बन गया, हाथ चमका और बहुत सी निशानियां। बनी इजराइल रात को निकले। फिरौन लश्कर लेकर पीछे आया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, डंडा मारो। दरिया 2 हिस्सों में बट गया। बनी इजराइल वहां से गुजर गए, लेकिन फिरौन डूब गया। तूर पर अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। हजरत मूसा 40 दिन गए। इस दौरान कौम ने सोने का बछड़ा बना लिया। वापस आए तो गजबनाक हुए, लेकिन दुआ की और अल्लाह ने माफ फरमाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नेक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई। वो बनी इजराइल के एक बुजुर्ग खानदान से थे और बहुत फसीह ज़बान, प्यारा बोलने वाले थे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, उन्होंने दुआ की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। अल्लाह ने कबूल फरमाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पर गए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाकर छोड़ा। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका, ये गुनाह है, अल्लाह से डरो। लेकिन लोग नहीं माने। वो अकेले थे तो उनका जोर नहीं चला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वफादार भाई, अच्छे वजीर और नरम दिल नबी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह। वो बनी इजराइल के बुजुर्ग थे और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। जब वो जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी झूम उठते थे, परिंदे रुक कर सुनते थे। छोटी उम्र में वो चौपाने थे। एक दिन जालूत नाम के जब्बार जंगजू ने बनी इजराइल पर हमला किया। सब डर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटा पत्थर उठाया, गुलेल से मारा और जालूत गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाही बख्शी। बादशाह बने तो अदलो इंसाफ का दौर था। रोज 100 नवाफिल पढ़ते, आधा दिन इबादत, आधा दिन हुकूमत। उन पर जबूर उतारी गई। ये अल्लाह की किताबों में से एक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बहुत बड़ी सल्तनत बख्शी। एक दिन 2 औरतों ने बच्चे का झगड़ा लाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इस बच्चे को तलवार से बीच में काट दो। सच्ची मां ने रोकर कहा, यह बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन इसे मत मारो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और बच्चा सच्ची मां को दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला नमूना था। अल्लाह ने उन्हें मौजज़ात दिए, हवा पर सवार होना, जानवरों और परिंदों की बात समझना। उनकी फौज में इंसान,
जिन्न, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्किस सबा की मलिका ने उन्हें दावत दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्न से उनका तख्त मंगवाया और बिल्किस ईमान ले आई। उनकी बादशाही अमन, अदल और इबादत से भरी हुई थी। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद डाली। आखिर में इबादत के हाल में विसाल पाया। लकड़ी के सहारे खड़े थे। जिन्न काम करते रहे। जब लकड़ी को दीमक खा गए तो जिस्म गिर गया। सबको पता चला। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पाक नबी, वो बनी इजराइल के वक्त लेबनान के करीब भेजे गए। लोग बुतों की पूजा करते थे, खास तौर पर बाल नाम के बुत को। उन्होंने सख्त पैगाम दिया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ो वरना अजाब आएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया। बाल के पुजारियों से मुकाबला किया। दोनों ने कुर्बानी रखी। पुजारियों ने बाल से आग मांगी, कुछ नहीं हुआ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। आग आसमान से गिरी, कुर्बानी जल गई। लोग हैरान होकर ईमान ले आए। आखिर में अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। आग के रथ पर सवार होकर आसमान पर चले गए। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन, उनके बाद बनी इजराइल के रहनुमा बने। वो बहुत इल्म वाले, सब्र करने वाले और मौजिज़ात के मालिक थे। एक बार एक गरीब औरत के बेटे मर गए। वो रोती हुई हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने बच्चे को जिंदा कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, एक बुजुर्ग नबी और बनी इजराइल के इमाम। वो बहुत उम्र में भी मस्जिद में इबादत करते थे। उनकी बीवी बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चुके थे। फिर भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे नेक औलाद दे, तू सुनने वाला है। एक दिन महराब में नमाज पढ़ते हुए फरिश्ता आया और खुशखबरी दी, तुम्हें बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। 3 दिन तक वो बोल नहीं सके, सिर्फ इशारों से बात की। फिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम छोटी उम्र से नबी, सादी जिंदगी गुजारते, उनका लिबास पहनते, रात भर इबादत करते, दिन में लोगों को तौहीद सिखाते। जब बादशाह हेरोद ने अपने भाई की बीवी से निकाह किया, ये गुनाह था। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, यह गलत है, तौबा करो। बादशाह को गुस्सा आया। औरत ने बदला लिया और हुक्म दिया, यहया का सर लाओ। सोने की ट्रे में उनका सर लाया गया। वो शहीद हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल्लाह, उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी। पाकदामन और अल्लाह की चुनी हुई खातून, कोई बाप नहीं। अल्लाह ने कुन फरमाया और वो पैदा हो गए। बचपन में ही गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे इंजील दी गई, नबी बनाया गया। लोग हैरान हो गए। वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर देते थे। अंधे को आंखें, बीमार को सेहत और मुर्दों को जिंदा करते थे। बनी इजराइल के लोग गुनहगार थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, मोहब्बत, सच्चाई का पैगाम दिया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, गुनाह छोड़ो, गरीबों की मदद करो। हवारी उनके साथी बने। यहूदी उलमा ने हसद किया, बादशाह के सामने झूठा इल्जाम लगाया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया, एक शख्स को उन जैसा बना दिया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार आएंगे, अदल कायम करेंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे, फिर विसाल पाएंगे। उनकी उम्मत को इंजील दी गई थी, मोहब्बत और रहमत की किताब, और अब वो नाम जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीका की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये नाम जबान पर आता है, दिल में एक ठंडी आंच सी उतरती है, आंखें भर आती हैं, रूह कांप उठती है, जैसे मक्का की रात में वो पहली वही उतरी थी और पूरी कायनात ने सांस रोक ली थी। वो रहमतुल्लिल आलमीन, एक यतीम जो अपनी अम्मी की कब्र पर रोए थे, एक जवान जो हिरा की गार में रोया था, एक नबी जो ताइफ के पत्थरों से लहूलुहान हुआ, लेकिन दिल में सिर्फ दुआ थी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वो नहीं जानते। उनका चेहरा जैसे चांदनी रात का चांद, साफ, रोशन, हल्की सी लाली, आंखों में समुंदर की गहराई, मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू। जब चलते जमीन खुशबू छोड़ती,
बादल उनके ऊपर छा जाते, परिंदे उनके साथ उड़ते। उनका लिबास सादा साफ, कभी एक हिचोड़ा महीनों तक। खुद कपड़े सीते, जूते की टांक लगाते, घर में बीवी बच्चों की मदद करते। दुनिया के बादशाह उनके दर पर आए तो देखा जमीन पर बैठे हैं, खुद भी जमीन पर। कोई तकब्बुर नहीं उनकी बात, हर लफ्ज कुरान का नूर, हर जुमला रहमत का पैगाम। एक गुलाम को आजाद किया तो फरमाया, आज से तू मेरा भाई है। एक यहूदी जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए। लोगों ने पूछा क्यों? फरमाया, क्या ये इंसान नहीं? फतह मक्का का दिन, वो शहर जिन्होंने उन्हें निकाला था, आज उनके कदमों में था, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ ये था, जाओ आज तुम सब आजाद हो। कोई बदला नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ माफी, सिर्फ रहमत। उनकी वफात जब रूह कब्ज होने लगी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कंधे पर सर रखा, लबों पर आखिरी लफ्ज अल्लाह, रफीक उल आला, और पूरी कायनात फिर सांस रोककर खड़ी हो गई। आज भी जब दुरूद पढ़ते हैं वो सुनते हैं, जब उनका नाम लेते हैं वो मुस्कुराते हैं, जब उनकी सुन्नत पर चलते हैं वो साथ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी नहीं थे, रहमत थे। वो इंसान नहीं थे, नूर थे। वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। अल्लाह हम सबको उनकी सोहबत, उनकी शफात, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। 25 अंबिया ए किराम, हजारों साल मुख्तलिफ जमीन, लेकिन पैगाम एक ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब बशर थे हमारी तरह, लेकिन उन्होंने अपनी हयात मिशन के लिए वक़फ़ कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका जिक्र कुरान करीम में फरमाया। उन सब पर दुरूद व सलाम हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर दिल को सुकून मिला, तो इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। कमेंट में जरूर बताएं कौन से नबी का वाकया आपको सबसे ज्यादा मुतस्सिर करता है। हिदायह हब से जुड़े रहें, क्योंकि हिदायत बांटने से बढ़ती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।